Hello guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on types of OTC drugs, misuse and abuse of OTC drug, the rational use of the drugs. For my previous videos on clinical pharmacy, you can check the link in the description box. You can click on the I button also. Let's talk about the rational use of the drug. So basically, rational use of medication refers to the correct, proper and appropriate use of the medicines. So rational use requires that a patient receive the appropriate medicines in the proper dose for an adequate period of time and at the lowest cost, and the use of an appropriate efficacious, safe and cost effective drug given for the right indications in the right dose and formulations at the right interval and for the right duration of time. सो बेसिकली रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग जो रहता है वो क्या होता है कि मेडिकेशन का करेक्ट और प्रॉपर यूज़ करना. किसी भी पेशेंट को अगर कोई मेडिकेशंस दी जा रही है तो वो मेडिकेशंस कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, प्लस वो उसका राइट डोज उस पेशेंट को मिले, वो उसके लिए सेफ़ हो और राइट फॉर्मुलेशन में दी जाए और राइट इंटरवल पे और राइट टाइम पे और राइट ड्यूरेशंस के लिए दी जाए. तो दैट इज़ द रैशनल यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग. कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो होती है जो कि अपन रैशनल यूज़ कर सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल्स है लाइक द कफ रेमेडीज़. तो कफ रेमेडीज़ में बेसिकली जो आती है दैट इज़ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, DXM जिसको बोलते हैं, DXM. डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ये कोल्ड सप्रेसेंट होती है जो कि OTC मेडिकेशंस के अंदर आती है. बेसिकली इसको अपन मिक्स करते हैं विथ अदर ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन्स एंड एसिटामिनोफेनॉल. व्हेन चिल्ड्रंस टेक दिस कंबाइंड ड्रग्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ ए डॉक्टर, इट में डेवलप मोर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. ये जो OTC मेडिकेशंस है इनको विदाउट डॉक्टर के रिकमेंडेशंस के बिना नहीं लेना चाहिए अगर चिल्ड्रंस के लिए आप ले रहे हो तो. Then let's talk about the next drug, that is acetaminophenol. Basically acetaminophenol को पैरासीटामोल भी बोलते हैं. It is very popular drug for the relief of hangover or the headache. जो active ingredient होता है that is acetaminophenol, तो वो मोर देन 600 OTC मेडिकेशंस में प्रिस्क्राइब किया जाता है. मोर देन 600 OTC medications. This including the pain relievers, cough suppressant and the cold medication. अगर ज़्यादा भी अगर आप एसिटामिनोफेनॉल को यूज़ करते हो तो इससे लीवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और लीवर डैमेज हुआ तो बेसिकली क्या हो सकता है, अल्टीमेटली आपकी डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं अगर लीवर आपका पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है तो, क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा कोई भी चीज़ आप खाओगे, तो अल्टीमेटली इट्स लीड टू द डेथ. इसलिए आपको कॉशन रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं. तो चिल्ड्रंस को जब आप एसिटामिनोफेनॉल देते हो तो टू मच नहीं देना चाहिए, उसको लिमिटेड अमाउंट में देना चाहिए. Then next is the aspirin. Aspirin is basically non-steroidal anti-inflammatory drug जिसको अपन NSAIDs ड्रग भी बोलते हैं. बेसिकली ये पेन रिलीवर की तरह यूज़ होती है. देन अगर ज़्यादा भी आप एस्पिरिन को यूज़ करते हो, OTC मेडिकेशन जो है ये एस्पिरिन को ज़्यादा यूज़ करते हो तो स्टमक ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं. This risk increases in people who are over 60 years of age or are taking prescription blood thinners, are taking steroids, have a history of stomach bleeding or ulcer, to have other bleeding problems also. Use of NSAIDs can also cause kidney damage. This risk may increase in people who are over 60 years of age, are taking diuretic. Drug that increase the excretion of blood is called as the diuretic. Have high blood pressure, heart diseases और pre-existing kidney diseases. तो किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर वो एस्पिरिन लेते हैं तो. नेक्स्ट इज़ द ओपोइड ड्रग जिसमें कि कोडीन का इस्तेमाल जो होता है दैट इज़ बेसिकली लीड टू द ड्रॉजीनेस. Do not drive or use any machinery that may injure you, especially when you first start the medication.
So the dose of an opioid pen medications that is safe for you could be high enough to cause an overdose and death in someone else, especially in the children. So you have to be take care of that thing, and you have to consult your doctor before giving the medication to the children. Then next is the diet pill. So most women are body figure conscious. So to achieve their ideal figure, diet pills may be abused for the fast result. So these are the medications which are used, which are having some rational use, OTC medicines. अगर लेबल की बात की जाती है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ओटीसी ड्रग लेबलिंग मस्ट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर नीड फॉर अ सेफ एंड इफेक्टिव यूज. दैट इज यू हैव टू मेंशन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑन दैट, then the use of the medication, then warnings, directions, other information, inactive ingredients, and the questions or the comments has to be written on the label. सो जो देख सकते हो आप, दैट इज़ द प्रॉपर लेबल ऑफ ए OTC मेडिकेशंस. सो एक्टिव इंग्रेडिएंट को आपको उसमें लेबल में मेंशन करना होता है, और क्या पर्पज़ है वो भी आपको मेंशन करना है, प्लस उसका यूज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा, वार्निंग्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी. आस्क अ डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर यूज़ इफ़ यू आर टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर्स और द sedatives. Then when using this product, you may precautions are written over there that you may get drowsy or something, avoid alcohol while drinking. So these the kind of things are written on the OTC medication label. Then if pregnant or breastfeeding, ask a health professional before use. Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact the poison control center, that is PCC. And then directions are written over the label, like adult and children 12 years and over take 2 tablets every 4 to 6 hours, not more than 12 tablets in 24 hours. Children 6 years to under 12 hours take 1 tablet every 4 to 6 hours, not more than 6 tablets in 24 hours. Then children under 6 years ask a doctor before giving this medication. And then other information like the storage condition, then inactive ingredients. So this is the label of the OTC medication. दैन द OTC ड्रग जो लेबलिंग होती है वो FDA के थ्रू रेगुलेट होती है. दैन एडवर्टाइजिंग जो होता है वो FTC के थ्रू होता है, दैट इज़ द फेडरल ट्रेड कमीशन. बट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एडवर्टाइजिंग इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड ओनली बाय FDA. तो OTC जो मेडिकेशन होती है उसका जो एडवर्टाइजिंग होता है वो FTC के थ्रू होता है, लेकिन अगर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है तो उसका जो एडवर्टाइजिंग होगा वो FDA के थ्रू ही होगा. सो OTC ड्रग रेगुलेशंस में in 1972, before and after, so ingredients fell into 3 categories, that is the category first, grease, category second, not grease, category third, cannot determine if safe and effective. So the OTC drug regulations having a drug monograph like recipe book, it is having a recipe book, so ingredient, dose, formulation, labeling and testing also written over there, and continually update होती रहती है रेसिपी बुक में जो OTC medications रहती है. फिर न्यू ड्रग एप्लीकेशंस प्रोसेस होती है न्यू इंग्रेडिएंट्स के लिए, फिर जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो OTC में स्विच हो जाती है. सो OTC रेगुलेशन इन UK में बात की जाए तो मेडिकेशन विल फॉल इनटू वन ऑफ द 3 कैटेगरीज, दैट इज POM. It means prescription only medication, then pharmacy only medications, behind the counter and general sales list. तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन और फार्मेसी ओनली मेडिसिन, बिहाइंड द काउंटर एंड जनरल सेल्स लिस्ट. सो RX टू OTC जब स्विच होता है तो ओवर 700 RX जो है वो स्विच हुई OTC में ओनली 30 ईयर्स एगो. देन RX टू OTC स्विच में क्या होता है कि रीज़न क्या है कि जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस है वो OTC में क्यों स्विच हुई है, किस वजह से हुई है. सो इनका जो रिस्क था और पोटेंशियल एब्यूज़ और डिपेंडेंसी थी तो वो थोड़ा सा लेस होने की वजह से OTC में स्विच हुआ है. फिर अवेलेबिलिटी जो है लार्जर पॉपुलेशंस इन अर्ली डिसीजेज लाइक हाइपर एसिडिटी, अल्सरेशन,
फिर द कंपनीज वे ऑफ एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ देयर ड्रग्स बाय क्रिएटिंग रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस प्राइस प्रोडक्ट. सो प्रिस्क्राइब ड्रग कॉस्ट हैज़ इंक्रीज बाय 15% पर ईयर. फाइनेंशियल रिलीफ भी मिल जाता था, इसलिए RX जो थी वो OTC में स्विच हुई है. तो एवरेज प्राइस ऑफ द ड्रग जो रहता है दैट इज़ ब्रांड नेम के साथ में अगर है तो $96 और जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन है तो $28 और OTC मेडिकेशन है तो $7 में ही आपको पड़ जाती है. तो दैट इज़ द एवरेज प्राइस डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड जेनरिक एंड द OTC ड्रग्स. सो बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी थी जिनको रिकॉल किया गया था, तो उसमें जो मेडिकेशन आती है दैट इज़ Tylenol. So in 2008, McNeil Company received complaints of an unusual moldy musty odor like the of that Tylenol. So इससे nausea, stomach pain, vomiting and diarrhea होने के चांसेस थे. सो इस वजह से इसमें इसको जो था 2,4,6-ट्राइब्यूटामाइड फॉर स्टोर पैकेजिंग मटेरियल, तो इसलिए इसको रिकॉल किया गया था. सो द FDA has issued a warning letter to McNeil. So in Jan 2010 recall took place. और another example like PPA, that is phenylpropanol-amine, so used in some cold and cough remedies. So ingredient cause serious allergic reactions, concern regarding stroke in young women, तो उसकी वजह से इसको रिकॉल किया गया था. सो OTC मेडिकेशंस का प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन है कि datas are lacking, so some are known to cause a birth defect. So estimated 50% of the product taken during pregnancies are OTC medications. So according to the new England Journal of Medicine, that is 10 to 45% of the pregnant women in first trimester unaware of their conditions use aspirin. तो एस्पिरिन और सैलिसिलेट ड्रग्स शुड ओनली बी यूज्ड अंडर द डॉक्टर सुपरविजन, स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर. सो एसिटाइल सैलिसिलेट में प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी. सो इस वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो OTC मेडिकेशन है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए किसी भी फिजिशियन के, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है और आप पे कैसे असर कर रही है वो मेडिकेशंस ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी हो सकता है. तो इस वजह से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के बिना OTC मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए. देन ड्राइविंग करते टाइम भी OTC मेडिकेशन से बचना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन एंटीस्टामिनिक ड्रग्स अगर हुई, डिकॉन्जेस्टेंट, स्पीड अप द CNS. सो नाइट टाइम कोल्ड एंड फ्लू मेडिकेशंस जो रहती हैं वो आपको वाइल्ड ड्राइविंग के टाइम पे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एंटीस्टामिनिक या फिर कोल्ड एंड फ्लू की कोई भी मेडिकेशंस लेते हो तो स्लीपीनेस, ब्लड विजन, डिजीनेस, स्लो मूवमेंट और फैंटिंग या एक्साइटेबिलिटी या नोजिया कॉज करता है, तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं आपके. So some are the examples of OTC drug categories like antacid and acid reducer, antiemetic medicines, anti-diarrhea, antihistamines, cough medicines, decongestants, herbal product and supplements, laxatives. So these are the examples, or you can say that the categories of OTC drugs. सो अगर लैक्सेटिव्स की बात की जाए तो मैनी प्रोडक्ट्स रिलीव कॉन्स्टिपेशन. सो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, ल्यूब्रिकेंट, स्टूल सॉफ्टनर, सलाइन लैक्सेटिव, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. So constipation usually goes away on its own, or if you make changes in diet and other habits, example enough fiber, drinking enough fluids and getting enough exercise, तो इससे भी आपको रिलीफ मिलता है. तो यू हैव टू डू एक्सरसाइज मेडिकेशंस लेने की बजाय. मतलब मेडिकेशंस आप लेते हो तो ऐसा नहीं कि मेडिसिन ही आपके उसमें असर करेगी, आपको एक्सरसाइज भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके साथ साथ में, तो वो बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. और पेन किलर्स की अगर बात की जाए तो दो मेन टाइप्स के पेन किलर्स होते हैं, दैट इज़ एसिटामिनोफिनॉल जिसको अपन पैरासीटामोल बोलते हैं, और एनसेट्स कैटेगरी में एस्प्रिन और आइब्यूप्रोफेन है. So if an OTC medicines doesn't help, you may have a more serious problem or need a prescription medications. So इसको लेके आप देख सकते हो पेन किलर्स में से एस्प्रिन, आइब्यूप्रोफेन या पैरासीटामोल लेके अगर इससे हेल्प नहीं मिलती तो यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर एंड यू हैव टू टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस फॉर दैट. तो अब आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या आपके लिए बेनिफिशियल्स है. तो फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह आप ईट करो ताकि आपको मेडिकेशन ईट ना करनी पड़े.
Now let's talk about the next category, that is weight loss OTC drugs. So FDA recently banned 111 ingredients in OTC weight control product because वो ineffective थे. और एग्जांपल्स के लिए देखा जाए तो अल्कोहल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैफीन, सेवरल फॉर्म्स ऑफ शुगर, फिनासेटिन, पेन डिलीवर, सोडियम एंड द ईस्ट. So in February 7, 2007, FDA approved Orlistat capsule as an OTC. So basically जो Orlistat was approved in 1999 as a prescription drug for obesity. So rename as a prescribed drug at a higher dose. तो higher dose में इसको as a prescribed medication यूज़ किया जाता है, और अगर lower dose है तो OTC में आप यूज़ कर सकते हो. तो जो Orlistat है वो अंडर द नेम ऑफ एली मार्केट में बिकती है. तो जून 15, 2007 से ये अवेलेबल होने लगी थी ड्रग स्टोर में. देन एली इज़ इंडिकेटेड फॉर एडल्ट एज 18 years एंड ओल्डर अलॉन्ग विद अ रिड्यूस कैलोरी, लो फैट डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम. So एली is an OTC lower dose versions of the prescription Xenical. So it's your choice what you have to do. You want to eat the medications to reduce your fat, or you want to do the exercise or eat healthy food. OTC ड्रग जो रहते हैं बेसिकली, तो उसके रेफरेंसेस के लिए यू कैन चेक द ऑरेंज बुक. So the list of approved drug product with therapeutic equivalence evaluation, so supposed to use in pharmacy all the time in the US. ऑरेंज बुक को आप यूज़ कर सकते हो OTC medications की लिस्ट को देखने के लिए. दैन ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी को आप देख सकते हो, जिसमें कि प्रिस्क्रिप्शंस ओनली मेडिकेशंस और कंट्रोल ड्रग और प्रिपरेशंस नॉट अवेलेबल फॉर द NHS प्रिस्क्रिप्शंस. तो ये चीज़ भी इसमें अवेलेबल रहती है. तो BNF या ऑरेंज बुक आप रेफ़र कर सकते हो. Then misuse and abuse of the OTC drugs. So basically farming means getting high, or common misconception OTC drugs are harmless, but it is not like that कि OTC मेडिकेशन हार्मलेस होती है. अगर आप उसका कंजप्शन अगर रेगुलर बेसिस पे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रॉब्लम होगी. So by the definition, OTC drugs can be used safely and effectively by reading and following the direction on the label. So misuse और abuse से बचने के लिए अगर आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करोगे जो भी लिखे हुए हैं, तो आप OTC मेडिकेशंस जो OTC मेडिकेशंस है तो वो इफ़ेक्टिव होगी और सेफ़ होगी आपके लिए. तो जो लेबलिंग रहता है रिटन इन ईजी एंड अंडरस्टूड लैंग्वेज ऑफ लो कम्प्रहेंशन. सो रिसेंट सर्वे हैव reported that consumers do not read OTC labels. If they do read them, they do not follow the directions on the labels. Or in one survey, it has been found that only 16% reported reading the entire product label. तो मिसयूज़ होने और अब्यूज़ होने के चांसेस कब होते हैं? देखो, एक तो लेबल जो बना हुआ रहता है OTC मेडिकेशंस के ऊपर, वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा रहता है ताकि कि कोई भी पढ़ सके. और रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट मिली है कि जो भी OTC मेडिकेशंस को कंजप्शंस करते हैं वो OTC के मेडिकेशंस के ऊपर जो लेबल रहता है उस लेबल को पूरी तरीके से नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ लेते हैं कोई तो उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं. तो रिपोर्ट में ये लिखा गया कि ओनली 16% जो है रिपोर्टेड रीडिंग के केसेस हैं जो कि इंटायरली पूरे प्रोडक्ट पे क्या लेबल है उसको पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. बाकी सब केवल पढ़ते हैं, उसको फॉलो नहीं करते. Abuse is most common in adolescent age, about 12 to 17 years. So readily available, no suspicions. Alcohol versus OTC. So adolescents are 18 times more likely to die from an OTC overdose than from an illicit drug overdose. So recent data suggests that MDMA, that is KETC abuse has decreased over the past 2 years. So yet OTC abuse is increasing. Then since reporting of this type of abuse is not mandatory, so the true incidence of OTC abuse is unknown. So the FDA has reported by trying to create OTC labels that are easier to read and understand. So however, there are no warnings against the international overuse of the drugs to get high.
अब कुछ फैक्ट्स एंड नंबर की अगर बात की जाए तो ओवर 36 मिलियन अमेरिकन यूज़ OTC पेन डेली ऑन डेली बेसिस, जो पेन डिलीवर्स रहती है तो 36 मिलियन अमेरिकन जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं. दैन इन 2006 3.1 million persons age of 12 to 25 had ever used an OTC cough and cold medicines to get high, and nearly 1 million had done so in the past year. So 30,000 people in the UK are addicted to OTC drug. Only 39% of the OTC drugs are now purchased in a pharmacy. So drug store, supermarket, gas station, airport, vending machines and the mass merchandisers, तो सारी जगह अवेलेबल होती है. तो यूके के अधिकतर जो लोग हैं वो OTC मेडिकेशंस को ही प्रिफर करते हैं. सो द OTC ड्रग एब्यूज्ड की अगर बात की जाए तो DXM, दैट इज़ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, so that it is basically antitussive medication. So DXM is found in more than 140 OTC cough and cold medications in the US. So internet sites explain how to extract DXM. So when taken at very high doses, it acts as a dissociative anesthetic similar to PCP anger dust. So DXM users consume more than 100 mg per dose. So tolerance develops. So long-term DXM users may need more than 1000 mg per dose to create the psychoactive effect. तो बेसिकली डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन अगर कोई भी पेशेंट लेता है तो देखो OTC 140 मेडिकेशंस में अवेलेबल है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ में. तो अगर लॉन्ग टर्म तक आप इसका कंजप्शन करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि 100 mg जो डोज है वो आपकी बॉडी पे बिल्कुल असर करना बंद कर देता है. तो आपको 1000 mg पे जाना पड़ता है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू. तो अब अगर एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो लार्ज डोज में तो डिक्रीज थर्मल रेगुलेशन को डिक्रीज कर सकता है ये. देन ड्राई माउथ और बॉडी फ्लूइड लॉसेस कर सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, डेल्यूजन्स हो सकते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, हाई BP, नमनेस ऑफ फिंगर्स और टॉयज, फ्लशिंग, हेडेक वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और रेयर केसेस में डेथ होती है तो ये भी अकर हो सकती है. सो द ट्रीटमेंट ऑफ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ओवरडोज इज नैलोक्सोन. अब सीएनएस स्टिमुलेंट एब्यूज़ में क्या होता है कि जैसे कि नेजल डिकॉन्जेस्टेंट हो गया, ब्रोंकियोडायलेटर्स हो गए, एपेटाइट सप्रेसेंट हो गया, एनर्जी पिल्स हो गया, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स हो गए, तो ये आप सीएनएस को स्टिमुलेंट करने के लिए ले सकते हो. एग्जांपल्स के लिए एफिड्रीन, सूडोएफिड्रीन एंड कैफीन. So ephedrine can be converted to methamphetamine chemically. So formulas are readily available on the internet. So in many states it is illegal to sell the single entity product containing ephedrine. So in toxic doses अगर ephedrine आप लेते हो तो क्या क्या कॉज करता है वो palpitation कॉज करता है, that sometimes progress to chest pain. Then सब मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं, एरिथमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, पैरानोया या सीजर्स आने के चांसेस हो सकते हैं. तो सूडोएफिड्रीन जो रहता है दैट इज़ द मेन नेजल कॉन्जेस्टेंस ओवर कफ एंड कोल्ड प्रोडक्ट टुडे. सो एब्यूज बाय जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं तो वो इसको लेते हैं. तो अदर एब्यूज OTC मेडिकेशंस लाइक एंटी डायरियल्स, एंटी हिस्टामिन्स, कैफिन्स वगैरह हैं. अब अगर रोल की बात की जाए कि क्लिनिशियंस का क्या रोल है इसमें, सो बेसिकली इट हेल्प द पेशेंट टू सिलेक्ट द सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट, then list the cost of the drug they prescribe so they can limit it, then review all the medications taken by the patient, then they can educate patients, community, friends and family about the OTC medications, then they encourage people to seek guidance from their physicians or the pharmacists before taking any over the counter medications. So these are the role of the clinicians. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.